नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि लोकसभा में आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश हो गया है। हालांकि विधेयक पेश करने के लिए भी वोटिंग करवानी पड़ी, लेकिन यह विधेयक पेश हो गया। अब चर्चा इस बात की है कि शायद इसको जेपीसी को भेजा जाएगा। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन है, इसको लेकर क्या कुछ खास बातें हैं, इस पर बात करेंगे। चर्चा तो प्रियंका गांधी के पर्स की आज भी है, क्योंकि कल भी पर्स की चर्चा हुई थी, आज भी पर्स की चर्चा क्यों है, इस पर भी करेंगे बात। और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी, और वो खास चर्चा होगी कि सेक्युलरिज्म में राम राम, क्योंकि ये सवाल उठा है कि क्या जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक है। तो इस पर जवाब आ रहे हैं पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है कि क्या यह सांप्रदायिक नारा है। तो इस पर करेंगे बात कि सेक्युलरिज्म क्या है इस देश में, और सेक्युलरिज्म को लेकर क्या कुछ चल रहा है। इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात होगी कि दिल्ली में चुनाव से पहले जो सीएजी रिपोर्ट है, उसको लेकर के एलजी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। तो इस पर भी हम लोग करेंगे बात। इस समय सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब दे रही हैं अनुपूरक मांगों पर। Questions on the economy, Madam, I'm sorry, I keep referring to you as sir. Madam, there were a lot of interest on the economy-related issues. Honorable members have asked questions about what is it about the economy that you can answer. We have got questions to ask. I'll try to address some of them. So Madam, the real growth rate for Q1 and Q2 of this financial year 25 has been 6.7% and 5.4% respectively. At 5.4%, the Q2 rate is slower than expected. Many members observed it, many members commented on it. Many members raised a doubt saying, is growth sustainable at all at the number that we projected in the BE? I'd like to touch upon some of the concerns. So, Q2 of this financial year has been challenging quarter for India and for most other economies of the world. In last 3 years, India's GDP growth rate has averaged 8.3%. This is outstanding. I don't want to judge myself, I don't want to judge the ministry, but this is a number before us, and this is a number which you can see, compare it with the rest of the globe. And this number is an outstanding number by global standards. India has been the fastest growing major economy in the world, and the credit goes to the people of India who are struggling and meeting their aspirations, thereby contributing to the economy, and with the leadership which puts policy up front so that it responds to people and their aspirations as well. So the two wheels have moved adequately in synchrony, as a result of which you see the growth numbers. A different perspective for the same thing is something which I'd like to put before you, Ma'am Chairperson. Out of the 12 quarters in the previous 3 years, GDP growth rate was lower than 5.4%. GDP growth rate was lower than 5.4% in 2 quarters. She gets involved. But I'm not able to understand, ma'am. Ignore him. Okay.
So out of the 12 quarters in previous 3 years, GDP growth rate was lower than 5.4% in 2 quarters, quarter 4 of 21-22 and quarter 3 of 22-23. So it's important to understand that this drop happened just 2 quarters in the last 12 quarters that we're talking about. So let us not sort of pick on that one and predict future. This has been a steady growth and a steady sustained growth. So I'd like to place that perspective with the numbers before me. The regular union budget was passed by the newly constituted Lok Sabha post-parliamentary elections in middle of August 2024. Effectively, the implementation of new announcements of this government commenced after the Appropriation Act was passed by the Parliament in August 2024. Effectively, it is from August that we are starting to give emphasis to many of the things, inclusive of capital expenditure, and therefore we are now talking within 4 months after the full regular budget was presented in August. So the situation is no different from one seen in earlier years when parliament elections were conducted. So that's a very important consideration which I would like the honourable members to take on board. When annual Lok Sabha elections happen, those years do have a certain flow of resources, do have a certain ground-related expenditure happening, and when it picks up, the growth rate also picks up. But the blip is got to be understood in the broader context. So differences in alignments of festivities. This is an important consideration because even countries which have annually a Christmas festival mood or any other festival mood, there is a rise and dip in consumption and expenditure. So between September and October this year, particularly for India, in the previous and current year, created a modest downward bias for the Q2 growth, because I think there was 15 days where people do not spend, and which came very close to also the Dussehra vacation when people spend, and as a result, that quarter got affected by good spending fortnight and a not so good spending fortnight, both occurring during that quarter itself. So the government believes that the trend in quarter 2, 24-25, is only a temporary blip, and the economy will see healthy growth in the next quarters. Also, a generalized slowdown in manufacturing is not expected, as it is restricted to few sections only. Out of 23 manufacturing sectors, and this is an important fact that I would like to place for the consideration of the honourable members, out of 23 manufacturing sectors, in the index of industrial production, about half of them remain strong even now. So ये सीधा प्रसारण आप लोकसभा से देख रहे थे, जहां पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय जवाब दे रही हैं। अनुपूरक मांगों की चर्चा का जवाब दे रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बता रही हैं जीडीपी के बारे में खास तौर पर वो बात कर रही थी। और अब इस वक्त प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। राजस्थान की भाजपा सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर के दादिया में करीब 46,400 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया शुभारंभ। लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक वोटिंग के जरिए हुआ पेश। बिल के तहत एक देश एक चुनाव का प्रावधान। अब बिल जेपीसी को भेजने को लेकर चर्चा। संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में की शुरुआत। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने बार बार गिराई हैं चुनी हुई सरकारें। वनुआतू में 7.3 तीव्रता के भूकंप के कारण जानमाल का हुआ नुकसान। अमेरिका और न्यूजीलैंड दूतावास की इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र। विशेष सत्र में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने को कहा। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने
मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडे का शुभारंभ। कहा पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर लोगों में बढ़ रहा है उत्साह। तो ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर संसद से, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। तो लोकसभा में पेश हुआ वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक। मतदान के जरिए विधेयक पेश करने का यह फैसला हुआ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। और बिल पेश करने के पक्ष में 269 वोट पड़े, जबकि विरोध में 198 वोट। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। सरकार इस बिल को अब जेपीसी को भेजने के पक्ष में है। उधर राज्यसभा की बात करें तो संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन है। जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की चर्चा की। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने बार बार चुनी हुई सरकारें गिराई हैं। लेकिन संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी वाड्रा के पर्स को भी लेकर लगातार दूसरे दिन चर्चा है। दरअसल कल फलस्तीन वाला बैग था, तो आज बांग्लादेश के हिंदू और ईसाई के मुद्दे वाला बैग लेकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा। 16 दिसंबर को कल ही था बांग्लादेश मुक्ति दिवस, तो कल लाना चाहिए था बांग्लादेश वाला मुद्दा, लेकिन कल तो बैग फिलिस्तीन वाला था। कल प्रियंका के फलस्तीन वाले बैग को तुष्टीकरण से जोड़कर किया गया था हमला। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस की नेता फलस्तीन वाला बैग लेकर संसद गईं और हम तो यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर कहा था। तो क्या कल के बजाय जब आज बांग्लादेश में हिंदू ईसाई उत्पीड़न का मुद्दा उठाने के लिए प्रियंका गांधी मजबूर हो गई कल के हमले के बाद? कायदे से तो कल ही बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रोज ये मुद्दा उठाना चाहिए था प्रियंका गांधी वाड्रा को, लेकिन कल फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई थी, बांग्लादेश का मुद्दा नहीं लाई थी। इस बीच पाकिस्तान के बड़बोले पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ कर दी है। फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को धन्यवाद दिया और कहा कि नेहरू की पोती से ही तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और ये साथ में ये भी जोड़ दिया कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने तो इस तरह का साहस नहीं दिखाया। फवाद चौधरी ने प्रियंका गांधी की तारीफ में कसीदे कर दिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर के जो विधेयक पेश किया गया, इसका कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हम इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंपे जाने की मांग करेंगे और हमारा मानना है कि यह असंवैधानिक है और यह मूल ढांचे के खिलाफ है। हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस के विरोध पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस बिना बात के इसे मुद्दा बना रही है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का कहना है कि ये असंवैधानिक है, तो क्यों देश को जब आजादी मिली थी तब तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया गया था। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो इस विधेयक को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग को लेकर भी चर्चा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका गांधी वाड्रा के बैग को लेकर क्या कुछ कहा था, जरा देख लीजिए। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए।
और क्या कुछ संसद भवन परिसर में एक देश एक चुनाव को लेकर और प्रियंका गांधी के बैग को लेकर के भी चर्चा है। तो सीधे जुड़ रहे हैं अपने संवाददाताओं से। हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं, संसद भवन परिसर से जुड़े हैं। साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं ही। पहले राजेश के पास मैं चलता हूँ। राजेश, और सरकार तो खुद ये कह रही है, सरकार की तरफ से ये बयान आ गया है कि भाई हाँ, हम जेपीसी को इसको भेजेंगे, तो फिर विपक्ष और कांग्रेस इसको क्यों मुद्दा बना रही है कि जेपीसी को भेजिए? सरकार खुद इसके पक्ष में दिखाई पड़ रही है, तो अब जेपीसी को भेजेगी शायद सरकार। तो विरोध का क्या कारण रहा कांग्रेस का और विपक्ष का? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा लालचंद्र कि जिस तरीके से सरकार की प्रतिबद्धता वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहले से दिखाई पड़ रही थी, विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाकर सुर्खियां बटोरना चाह रहा था। और हमने देखा कि कांग्रेस के सांसद हों या फिर समाजवादी पार्टी के सांसद हों, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने जोरदार इस बिल का विरोध किया और कहा कि देश में हमेशा जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में चुनाव होते रहे हैं। कोई सरकार अगर गिरती है तो क्या फिर हम दोबारा से नियत समय पर चुनाव करा सकेंगे? तो अपने अपने तर्कों के साथ विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर था, लेकिन सरकार ने गेंद को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विपक्ष के पाले में डालते हुए उनको एक्सपोज करने की भी कोशिश की। और विपक्ष ने विरोध भले ही किया हो, लेकिन सरकार ने जेपीसी में भेजकर इसे कहीं ना कहीं एक समन्वय स्थापित करने वाला जो है वो फैसला किया है कि इसमें जब बड़े बड़े लोग बैठेंगे जेपीसी में और जो अपने अपने सुझाव लोग देंगे, तो फिर जो छन छन कर जो बातें बाहर निकलेंगी, फिर जब वो विधेयक बनेगा तो उस विधेयक का स्वरूप एक बेहतरीन स्वरूप लेकर आएगा और वो कहीं ना कहीं देश के लिए लाभप्रद साबित होगा। आपने देखा कि वक्फ बोर्ड पर भी विपक्ष ने तमाम तरह की आशंकाएं जताई, लेकिन जेपीसी में भेजकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने की कोशिश की। लौटता हूं आपके पास राजेश। मैं जरा जो ये वन नेशन वन इलेक्शन, विनोद जी, अभी किरण रिजिजू भी कह रहे थे कि भाई जब देश में शुरुआत हुई आजादी के बाद तो वन नेशन वन इलेक्शन ही तो था, तो विरोध कहां है और किस बात का विरोध है? विनोद जी। विरोध और तो स्वाभाविक है लाल जी, हम तो ऐसे किसी बिल से उम्मीद नहीं करते हैं कि सरकार के किसी बिल को लेके विपक्ष का विरोध ना हो। विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि विरोध का जो कारण गिनाया जा रहा है और तर्क जो गढ़े जा रहे हैं वो कितना सही है, इसकी चर्चा हो सकती है। अभी जो संसद में जो चर्चा हो रही थी बिल को रखने के समय में, कांग्रेस पार्टी को तो बिल के रखने से ही दिक्कत थी, इसलिए वोटिंग की जरूरत पड़ी थी और वोटिंग हुई और बिल को रखा गया था, टेबल किया गया था। सवाल उससे ज़्यादा ये है कि अभी आप जब प्रियंका गांधी का दिखा रहे थे बिल पे, तो आपको अभी राजेश राज बता रहे थे कि अब तो ये जेपीसी में चला गया है और जेपीसी में इसकी बैठक होगी और इसके बाद उस चर्चा में ही निकल के आएगी बात कि उस बिल को किस तरह से आगे बढ़ना है। ये बात है कि कांग्रेस कम से कम भारत सरकार और मोदी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है कि ये देश की ज़रूरत है, देश की मांग है कि एटलीस्ट 2029 के बाद के जो चुनाव हों वो अगर व्यवस्था में एक होते हैं तो देश के जो संसाधन है, देश के लोगों की जो अपनी क्षमता है, उसका एक सही उपयोग हो पाएगा। ये जो साल भर इलेक्शन का ही माहौल बना रहता है देश में, तो उससे ये लोगों को भी ये दिक्कत अब महसूस होने लगा है कि हर साल कहीं ना कहीं एक इलेक्शन हो रहा है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट है कि आजकल पार्लियामेंट में एक इवेंट मैनेजमेंट का भी एक कांग्रेस पार्टी का एक नया हम लोग देख रहे हैं। अब उस इवेंट मैनेजमेंट, हाँ, अब सिर्फ आज का ही बैग नहीं, उनका रोज रोज कुछ ना कुछ आ रहा है, कभी अडानी को लेके, कभी कुछ लेके। और आज जो इनका इवेंट था वो तो आपने देखा, बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों को लेके उनका ये था कि उनका जो अत्याचार उनके खिलाफ हो रहा है वो भी उनका हम लोगों ने देखा। लेकिन कल पाकिस्तान के तरफ से जो ये रिएक्शन आया है, तो ये फिलिस्तीन वाला जो वो झोला है वो प्रियंका गांधी को इंटरनेशनली वो एक फेम में ला दिया है। अब वो पाकिस्तान के संसद में विपक्ष में रहे और फवाद चौधरी मिनिस्टर रहे हैं इमरान खान सरकार में, वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ व सिर्फ दुनिया में नेहरू परिवार से ही और नेहरू की पोती से ही ये उम्मीद है। तब नेहरू पे ही इतनी उम्मीद थी तो पाकिस्तान क्यों बना भाई? यही सही बात, ये बड़ा सवाल है, बेसिक सवाल है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है
ये बहुत गंभीर बात है और समझने की जरूरत है। भारत के साथ, इजराइल के साथ भी और फिलिस्तीन के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है। बिल्कुल, हमारे साथ में दोनों देशों के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग है। भारत सरकार ने अभी फिलिस्तीन को भी पूरी मदद और राहत दी है इस वार के समय में। तो सवाल यह है कि इजराइल भी आपका एक मित्र देश है जिसके साथ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन है। तो सरकार और भारत देश का जो किसी देश के साथ में अपना एक रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको आप धता बताते हुए, फिलिस्तीन की बात करते हुए जब संसद में चर्चा चाहते हैं, तब आपके ऊपर जरूर पूछा जाएगा क्या इजराइल जाने वाले जो योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, जो हजारों लोग रोजगार में जा रहे हैं, जो रोजगार देने के लिए वो खुद एम्बेसडर चल के यूपी में आते हैं, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे कम से कम 56,000 से ज्यादा लोग वहां काम कर रहे हैं। तो क्या आप उसकी हंसाई कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स नहीं है। और इवेंट मैनेजमेंट में भी कुछ गड़बड़ाया तो जरूर है। राजेश, कल बांग्लादेश मुक्ति दिवस था, तो कायदे से बांग्लादेश वाला मुद्दा तो कल आना चाहिए था, लेकिन आज आया है। कल फिलिस्तीन आया, आज बांग्लादेश वाला मुद्दा आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल बहुत ज्यादा जब हमले हुए तो ये लगा कि भाई चलो आज बांग्लादेश वाला करना चाहिए, आज बांग्लादेश वाला, जबकि कायदे से तो कल ही होना चाहिए बांग्लादेश वाला। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है लालचंद्र जी, कि भाई और बहन में नेता बनने की जो होड़ है वो जरूर लगी हुई है। जो मैं मोटे तौर पर, मैं करीब 15 वर्षों से संसद कवर कर रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों की टोली अलग अलग निकलती है। राहुल गांधी हर मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, बात नहीं करते हैं। प्रियंका हर मुद्दे पर रिएक्ट करती हैं, लेकिन रुकती नहीं है। वो चलते चलते मीडिया से मुखातिब हो लेती हैं। आज भी जब हमने उनसे पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है कहते हुए गाड़ी में बैठ गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इवेंट मैनेजर की जो टोली है वो जरूर लगी हुई है, क्योंकि कल भी जो है, कल फिलिस्तीन का झोला लेकर वो आई, आज बांग्लादेश का वो झोला लेकर पहुंची। और फोटो खिंचाने का जो अंदाज था, वो अंदाज दोनों बिल्कुल एक था, कल वाला और आज वाला जो उनकी तरफ से जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की वो कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है, अभी आई है नई चुनकर, और तो इतने कम समय में भाई को चुनौती देने में तो जरूर कामयाब हो रही है। इवेंट मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, या आज वाला इवेंट मैनेजमेंट कल के हमले के बाद ये किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। संसद भवन परिसर से राजेश राज और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी हम खास चर्चा करने वाले हैं कि सेक्युलरिज्म में राम को लेकर बड़ा चर्चा है। ये चर्चा जो है विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक में ये चर्चा है। इस पर आज खास चर्चा करने वाले खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, कि आज बात करेंगे कि सेक्युलरिज्म में ये जय श्री राम, राम राम से दिक्कत क्या है। और ये बहस दरअसल इतनी ज्यादा हो गई है कि विधानसभा, संसद और अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये बहस पहुंच गई है। तो सेक्युलरिज्म में राम राम। संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर जुबानी जंग तो जारी है ही, वो हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। विपक्ष जहां मोदी सरकार में सेक्युलरिज्म पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सेक्युलरिज्म को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर मनुस्मृति के अनुरूप संविधान बनाने का आरोप लगा दिया, तो सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और बड़ा माकूल जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया गया संविधान को। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 200 सेक्युलर देशों में किसी भी 4 देश का नाम बता दीजिए जहां संविधान से ऊपर शरिया कानून हो। उन्होंने शाहबानो केस का उदाहरण भी दिया, जिसमें संविधान के ऊपर शरिया कानून को रखा गया था।
पहले वर्शिप एक्ट आया, 1947 की स्थिति मानी जाएगी। बाद में वक्फ कानून भी आ गया जिसमें कोई समय सीमा तय नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा है कि जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक कृत्य है। दरअसल याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली गई थी। शिकायतकर्ता हैदर अली की याचिका में पीठ ने पूछा कि वो एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे। यह अपराध कैसे हो गया? पीठ ने पूछा उसकी पहचान कैसे हुई? तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इसे किसी वर्ग की धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाती है। उधर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में शीतकालीन सत्र में इसी जय श्री राम के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। दरअसल संभल में दंगे होने की वजह सपा नेता जय श्री राम के नारे लगाने का आरोप लगा रहे थे कि इसी वजह से दंगा हुआ। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दूसरे के तो अभिवादन में लोग राम राम बोलते हैं, तो फिर जय श्री राम सांप्रदायिक कैसे हो गया? योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, क्यों ऐसी व्यवस्था बनी कि एक मुस्लिम जुलूस हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से आराम से निकल सकता है, लेकिन जब एक हिंदू शोभा यात्रा हो तो मुस्लिम मोहल्ले या मस्जिद के सामने से नहीं निकल सकती। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। आखिर इस व्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? और बड़ा सवाल यही है कि जब धार्मिक सहिष्णुता की बहस की जाती है तो फिर यह अपेक्षा सिर्फ एक समुदाय से ही क्यों होती है? अपनी कमियों को लेकर समाज को आत्म परीक्षण करना होगा, तभी हम सही सेक्युलरिज्म लागू कर पाएंगे। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया था कि पहले आरएसएस ने ही मनुस्मृति पर विरोध किया था। पूरा देश जानता है 1949 में आरएसएस नेताओं ने भारत के संविधान का विरोध किया था, क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा। तो भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया, कहा सेक्युलर शब्द को आंबेडकर जी ने भी उस वक्त मना कर दिया था, लेकिन बाद में आपने जोड़ दिया। संविधान की उद्देशिका, जिसे डॉक्टर साहब अंबेडकर ने कहा था संविधान की आत्मा, उसमें चेंज किया गया। और फिर महोदय सिर्फ इतना ही नहीं रहा, जब से वो वर्ड आया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इस देश में क्या हुआ कि पर्सनल लॉ बोर्ड आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि जब सुप्रीम कोर्ट और शरिया में यह लगा कि मतभेद है, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दिया। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी सेकुलर देश में ऐसा कोई एक उदाहरण बता दे तो मैं अपना बयान वापस लेने को तैयार हूं। तो ये तो बात हुई संसद में जो चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी बड़ी बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि क्यों ऐसी व्यवस्था बनी कि एक मुस्लिम जुलूस हिंदू मोहल्ले और मंदिर के सामने से निकल सकता है, लेकिन एक हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से निकलने के बाद परेशानी हो जाती है। आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने देंगे। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर के कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी वो परंपरागत जुलूस था और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है। तो ये बहस अपने आप में बहुत बड़ी बहस इन दिनों बन गई है कि क्या इस तरह का जय श्री राम का नारा लगाना सांप्रदायिक है? क्या कहीं से अगर शोभा यात्रा निकलती है तो वो भड़काने वाली बात है? उस पर पत्थरबाजी ज़रूरी हो जाती है? दंगा करना ज़रूरी हो जाता है क्या? ये बहस चल रही है संसद में भी, विधानसभा में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो हम भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। खास चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधा हलकाई जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी कर्नाटका की। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, नमस्ते। साथ में सैयद जवाद साहब हैं,
पॉलिटिकल एनालिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में बहुत ही मजबूती से बात रखते हैं। स्वागत जवाद भाई आपका भी बहुत बहुत इस चर्चा में। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं चर्चा को थोड़ा सा विस्तार देता हूं। विनोद जी, अब तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ये बात थी कि कौन सा नारा सांप्रदायिक है, जय श्री राम कितना सांप्रदायिक, अल्लाह अकबर कितना सांप्रदायिक, कहाँ से जुलूस निकालना सांप्रदायिक हो जाता है, कहाँ से शोभा यात्रा निकालने के बाद सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना कि चर्चा के बाद एक पकने का समय आ जाता है। अब देखिए, संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह अब इस बात पर चर्चा हो रही है। अब लगता है इस मामले का कुछ समाधान आपको निकलता हुआ दिख रहा है क्या विनोद जी? लाल जी, ये इस देश के लिए आप कहें और हम लोगों के लिए भी कि ये संविधान निर्माण के 75 साल में जो ये संसद दोनों सदन में जो चर्चा हो रही है, अमृतकाल का आप ये कह सकते हैं कि ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही संयोग की बात है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं और मजबूती से रख रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि इस देश को ये बात समझने की ज़रूरत तो थी कि ये सेकुलरिज्म का मतलब हो या और दूसरे चीज़ें की व्याख्या अलग अलग तरीके से अलग अलग नैरेटिव्स में की गई है, उस देश में, जिस देश में जो परंपरा सेकुलरिज्म की, सहिष्णुता की हजारों साल की परंपरा रही है, उस देश में आखिर इन चीज़ों को लाने और उसका नैरेटिव का मतलब क्या था, और उस मतलब की व्याख्या आप भी राज्यसभा के दोनों बाइट को आपने सुनाया, सुधांशु जी का भी सुनाया था और माननीय खड़गे जी का भी आपने सुनाया था। जी जी। लेकिन सवाल यह है कि लोगों के लिए ये अच्छा मौका है कि लोग इस बात को जाने कि इस बात के लिए जाने कि ये संविधान के लगातार जो संशोधनों का जो दौर रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या रही है और उसको देश हित में, समाज हित में या वोट हित में कितना उसका फर्क रखा गया, कितनी उसकी बातें हो गई, ये भी आज इस चर्चा में आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज है, जब कल सुप्रीम कोर्ट में ये बहस हो रही थी लाल जी, और सुप्रीम कोर्ट में जब कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ में ये बात आई थी जी कि किसी एक सज्जन ने या कोई व्यक्ति ने मस्जिद में या उसके आसपास में कहीं जय श्री राम कहा था, ठीक तो है, उसको ये आपत्तिजनक मानते हुए उस पर ये कार्रवाई हुई थी। जो भारतीय न्याय संहिता के अभी कानून है उसके हिसाब से कानून का उस पर लगाया गया। पुलिस ने आरोप में शिकायत की गई, एफआईआर हुए, उसकी अरेस्टिंग हुई। बाद में हाईकोर्ट ने उसको रिलीज किया था, यह पूछते हुए कि बता दो पहले मुझे कि ये जय श्री राम का नारा लगाना कैसे आपराधिक है, ठीक है, ये आपराधिक कृत्य कैसे हो गया, ये आप इसको बताइए। और शायद इसी बिना पे उनको बिल भी मिला था और उनके इस केस को खारिज कर दिया था। जी, यही केस लेके फिर सुप्रीम कोर्ट आए थे। जी, तो सवाल है कि इन सब चीजों को लेके कि भारत की परंपरा, भारत के मानस में ये लोक चेतना के राम राम का एक शब्द है, जहां जन्म से लेके मृत्यु तक राम है, उसको, उस बात को लेके अगर कोई समाज में यह बात फैलाई गई है, मैं कह रहा हूं ये एक तरह से फैलाई गई है कि जय श्री राम को लेके आपत्ति होती है, उसको एक सांप्रदायिक माना जाता है, तो कह सकते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में राजनीति जो है अपीजमेंट की, उसने इसमें जहर घोल दिया। बिल्कुल जहर घोल दिया और उसी जहर का नतीजा हम समय समय पर देखते रहे हैं और वो नतीजा अभी संभल में भी दिखा है। सैयद जवाद भाई, जरा मुझे बताइए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि क्या एक जो सवाल उठ रहा है कि देखिए, अगर कोई भी मुसलमानों का कोई त्योहार है, उसका कोई जुलूस निकलता है, आराम से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले कभी शिया सुन्नी के बीच ताजिया को लेकर टकराहट की खबरें आती थी, आजकल वो भी खबरें अब नहीं आती हैं, यानी कि वो बिल्कुल आराम से गुजरता है। तो क्यों सैयद जवाद भाई, आप चाहे देखिए दुर्गा पंडाल हो, गणेश पंडाल हो, छठ पूजा का घाट हो, कि कोई भी काली पूजा हो, कि कुछ भी हो, हर जगह से कहीं ना कहीं से पथराव की खबर, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ जाती है। हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, रामनवमी शोभा यात्रा हो, आती ही आती है। तो आखिर क्या हमने ऐसा क्या माहौल बना दिया है जवाद भाई कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं और लोग इसको टॉलरेट नहीं कर पाते? सहनशीलता, सहिष्णुता तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है, फिर भी ऐसी खबरें आ जाती हैं। जी लाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। बिल्कुल, आपको भी जय हिंद, जय संविधान। करता हूँ, न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का काटा है हम ही से निकलेगा। देखिए, आपको 90s का दौर याद होगा। उस 90s के दौर के अंदर जब रामायण सीरियल आता था जी, तो घरों में, कुछ ही घरों में
टेलीविजन हुआ करता था और दूरदर्शन पे दिखाया भी जाता था, और तमाम सारे लोग मिल करके एक ही घर के अंदर जहां टेलीविजन होता था वहां हम सब लोग बैठ करके रामायण देखते थे। महाभारत सीरियल आता तो महाभारत सीरियल एक घर में टीवी हुआ करती थी, वहां सारे समुदाय के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग एक साथ मिल करके बैठ करके महाभारत भी देखते थे। ठीक है। और तमाम धार्मिक कार्यक्रम आते थे, और वो कार्यक्रम ऐसे होते थे डीडी न्यूज पर कि भाई शाम में जब वो कार्यक्रम आते थे तो रोड जो है वो सूनी हो जाती थी, शहर के शहर सूने हो जाते थे उसको देखने के लिए। और क्या शानदार उसमें गीत होते थे, कितनी शानदार वाणी होती थी, वाक पटुता होती थी, और तमाम खूबसूरत उसमें जो है बड़े अच्छे संगीत के तौर पे एक प्रभु श्री राम जी का जो हमारे दिलों में, हमारे मस्तिष्क के अंदर आज भी चरित्र, कितना उदारवादी, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत, कितना दिल को मोह लेने वाला जो है। उसी सीरियल में जय श्री राम के नारे भी आते थे खूब, है ना? खूब आते थे, खूब आते। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका के अंदर तो वो खड़े होते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं युद्ध लड़ने के लिए, और बड़ा उत्साहित लोग हो जाते थे। लेकिन लाल सिंह सर, आज तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, आज की शोभा यात्राओं में वो गाने बनते हैं जिसमें बाकायदा महिलाओं को अपमानजनक करने वाले गाने डीजे के ऊपर बजते हैं। ऐसे गाने बजते हैं जो पूरी अपनी सामाजिक ताने बाने को खराब करने वाले गाने बजते हैं। और आप, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि डीडी न्यूज पे आप वो जो शोभा यात्राओं में गाने हैं विनोद मिश्रा जी, वो आप चला नहीं सकते, सुन नहीं सकते घरों के अंदर, और वो मस्जिदों के सामने से जाकर के। ठीक है, डीडी न्यूज पर नहीं चला सकते, अदालतों में तो रख सकते हैं कि देखिए ये वाला गाना बजा था इसीलिए हम भड़क गए थे। बात भड़कने की नहीं है। देखिए, कोई बात भड़कने की नहीं है। आपकी सबसे पहले नियत क्या है? आपकी नियत क्या है? किसी को प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली नियत है तो आप यकीन मानिए लोग आपके सामने स्नेह से आएंगे, प्यार से आएंगे। आपकी नियत अगर यह है कि किसी को मैं प्रवोक कर रहा हूं और चिढ़ा रहा हूं, चीजें हैं, तो आपके पास उसी दिशा से लोग आएंगे। आप यानी नियत पर आपको लगता है कि जय श्री राम के नारे से दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस नियत से लगाया जाता है वो नियत पर दिक्कत है। सारा लाल सिंह सर, पूरी दुनिया का निजाम जो टिका हुआ है वो नियत पर है। आज आप एंकर हैं, आपकी नियत ये है कि आप निष्पक्षता के साथ काम करेंगे, सरकार से कठोर सवाल करेंगे, ये आपकी नियत है। ये आप सरकार के चाटुकार बनना चाहते हैं, ये आपकी नियत है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूं, पर्सनल नहीं कर लीजिए। नहीं, मैं उसको बिल्कुल आप उसी भावना के साथ ले रहा हूं, उसी भावना के साथ ले रहा हूं जिस भावना से आप कह रहे हैं। मैं कभी नाउम्मीद नहीं होता अपने देश के भारतवासियों से, कभी समाज से नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है। नाउम्मीद शख्स दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं लौटता हूं जवाद भाई आपके पास। जरा डॉक्टर सुधा हलकाई जी को मुझे शामिल कर लेने दीजिए। डॉक्टर सुधा हलकाई जी, 10 सेकंड। हाँ, कर लीजिए, पूरी कर लीजिए फिर सुधा जी। जितना जिक्र बाबर का भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, मुगलों का दौर की बात करते हैं लगातार, इतना कभी नहीं करा होगा, क्योंकि मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास एक विशेष लोगों का रहा हुआ है। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी को हो सकता बाबर को गालियां देने का, और उसके बाद आप देखिए एक काम फिर करते हैं, आपने मुगलों से रिश्तेदारी की बात उठाई ना, अगर पहले जिसका जो रहा हो, आज सब लोग औरंगजेब से रिश्ता और मुगलों से रिश्ता काट लेते हैं, उनकी सारी चीजों से रिश्ता काट लेते हैं। हमारा नहीं है लाल सिंह सर, मैं पूरी जिम्मेदारी, कोई भी ये ना कहे कि ये औरंगजेब का था इसलिए ये मेरा है, ये इस तरह से काट लीजिए रिश्ता बिल्कुल औरंगजेब की चीजों से। ठीक है, डॉक्टर सुधा हलकाई जी को आप मुझे लाने दीजिए। डॉक्टर सुधा हलकाई जी, ये कर्नाटक हाईकोर्ट वाला क्या मामला था जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है? डॉक्टर सुधा, अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है वो मामला, क्या मामला था, उसकी क्या गलती थी? और जो सैयद जवाद भाई कह रहे थे कि क्या उसकी भी नियत गलत थी जय श्री राम कहने में, इसीलिए उसको वो सजा मिली थी क्या जो बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा था? डॉक्टर सुधा। धन्यवाद। पहले तो मैं अभी इन्होंने जो बोला है कि आड़े तिड़े गाने लगाते हैं प्रोसेशंस में वगैरह, इसकी वजह से जब मस्जिद के सामने प्रोसेशन निकलता है तो उसकी वजह से ये लोग भड़क जाते हैं और दंगे फसाद हो जाते हैं। तो मुझे उनको पूछ लीजिए, अभी नागमंगला में कर्नाटक में जब गणेश जी की मूर्ति जा रही थी तो वहां पे दंगे फसाद हो गए। मैंने उदाहरण दिया, मैंने उदाहरण दिया था। नहीं, एक मिनट, पेट्रोल बॉम्ब डाले थे वहां पे। मतलब अचानक से पेट्रोल बम तो तैयार होता नहीं है, मार्केट में मिलता नहीं, उसको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है ना।
तलवार वहां पे थे, लाठी वहां पे थे, मतलब जो कुछ भी चाहिए दंगे फसाद के लिए सब कुछ, एवरीथिंग वाज कुक्ड ओवर देयर, पहले से लाके रखा था ये लोगों ने वहां पे। और कर्नाटका की जो होम मिनिस्टर हैं वो बोलते हैं कि ये आकस्मिक घटना थी। ठीक है, आकस्मिक घटना थी, मतलब इनके यहाँ सब कुछ तैयार रहता है, देनो प्रोसेशन जा रहे हैं। और हालांकि पहले साल भी, मतलब पिछले साल भी वहां पे एक दंगे फसाद हुआ था जब गणेश जी की प्रोसेशन जा रही थी। तो ये सब तैयारी पहले से ही तैयार करके रखा है कि ऐसे नहीं है कि आड़े टेढ़े गाने डाल दिए और इन लोगों को मतलब इनकी सहनशीलता शक्ति इन्होंने लूज कर दिया और ये लोग दंगे फसाद शुरू कर दिए। तो पहली चीज दे हैव टू एक्सेप्ट दैट। सेकेंड थिंग इज, कर्नाटक में जब बोला हनुमान चालीसा जब चलाई जा रहा था, फिर कोई आके उसके ऊपर हत्या करते हैं। कनाडा में बात करते हैं तो रात में 12 बजे एक महिला के ऊपर वो लोग अत्याचार करते हैं। और कर्नाटक में जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है, डिप्टी सीएम बोलते हैं कि ये हमारे भाई है, जो टेररिस्ट है, ब्रदर्स, डीके शिव कुमार बोलते हैं। और उसको भी बोलते हैं ये एक आकस्मिक घटना थी, उनका एक निजी मामला था। कर्नाटक में असेंबली में जब बोलते हैं प्रो पाकिस्तानी स्लोगन जब बोलते हैं तभी भी ये लोग इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जय श्री राम वाले मामले पर बताइए जरा कि वो क्या मामला था कर्नाटक हाईकोर्ट जो गया था। वही बोल रहे हैं, जब जय श्री राम वो लोग बोल रहे थे तो इन्होंने जाके उसके ऊपर कोर्ट में दे हैव फाइल्ड अ केस कि हम लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते। मतलब यू आर गोइंग इन दैट सामने जा रहे हैं तो हम लोग नहीं बोल सकते। और सेक्युलरिज्म बोलिए, जब अंबेडकर जी जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने सेक्युलरिज्म नहीं डाला था क्योंकि हमारे नस नस बिल्कुल ये मुद्दा संसद में भी उठा है, ये हमारे नस नस में सेक्युलरिज्म है। सेक्युलर हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग पैदाइशी, मतलब हमारा कल्चर जो है, हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अतिथि आके हमारा सर काटे और हम लोग ऐसे। ठीक है सुधा, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ, डॉक्टर सुधा मैं लौटता हूँ आपके पास। मुझे विनोद, जवाद भाई आता हूँ, विनोद जी को जरा शामिल करने दीजिए, विनोद जी को शामिल करके फिर आता हूँ। विनोद जी, आपने दोनों, मैं जवाब साहब आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझे पूछा है। आप एक मिनट धैर्य रखिए, विनोद जी को लेकर आता हूँ। डॉक्टर सुधा, ठीक है, डॉक्टर सुधा सैयद जवाद जी। मैं मुझे सीधे जवाद साहब ने पूछा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जवाद साहब आप इतने भड़कते क्यों हैं? इतने भड़कने का मतलब क्या होता है कि आपके किसी मुस्लिम मोहल्ले में कोई संगीत, कोई शोभा यात्रा निकल रही हो तो आप भड़क जाएंगे। अभी सुधा जी जो बता रहे थे कि उस भड़कने पे गणेश जी की का वहां पे शोभा यात्रा है, उनका विसर्जन कार्यक्रम है, तमाम तो गणेश जी का आप भड़क गए, इतने भड़क गए कि पेट्रोल बम चला दिए। आप इतने भड़क गए बहराइच में कि राम गोपाल मिश्रा को घर में खींच के गोलियों से 36 गोलियां दाग दी। इतने भड़कने वाले हैं आप लोग। आप इतने भड़क गए संभल में कि पूरे इस आजादी के बाद वहां 22 दंगे कर दिए, एक आबादी को वहां से गायब कर दिया। इतने भड़कते क्यों है भाई? किस सेकुलरिज्म ने आपको यह परमिट दिया है कि आप भड़कते रहो? आप बंगाल में चले जाइए, भड़कने वाले को तो हमने 47 में अलग देश बना के दे दिया था। ममता बनर्जी कहती है कि ये हम परमिशन नहीं देंगे वहां जब रामनवमी की शोभा यात्रा होती है। क्यों भाई? तो ये मुस्लिम इलाका है। आजादी के बाद ये शायद इस हिंदुस्तान में ही हुआ होगा, ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका। अरे भाई ये देश का ये सारा रास्ता है, सड़कें हैं, समाज है। आप मुस्लिम इलाका, हिंदू इलाका, इसमें भेद क्यों है? क्यों बहराइच में दंगा हुआ? क्योंकि आप भड़क गए। आप भड़क गए इस चीज के लिए कि भाई वहां से यात्रा निकल रही है कि मुस्लिम इलाका है। क्या तुक है भाई? क्या तर्क है आपका? आप रामायण सीरियल भी देखते हैं और उसके बाद जय श्री राम से भड़क जाते हैं। क्या मतलब है? ठीक है, ये एक बड़ा बात ये समझिए कि इस देश में जितने भी ये सारे उन्माद हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसका कोई न कोई उसी सेकुलर पार्टी का कोई नेक्सस रहा है। क्यों बर्क साहब की पूरे खानदान की जो बर्क हम लोग कहते हैं, कल भी हमने किया है कि संभल के बर्क परिवार का सेकुलरिज्म, क्या यही सेकुलरिज्म है? जहां से खोदो वहीं से मंदिर निकल रहा है और आपका भाईचारा खुद जाता है खुदने के साथ। इस सवाल का जवाब चाहिए जो समाज को ही सोचना होगा। बिल्कुल, आप कहानी मत बनाइए कि गाने बजा देते हैं, वीडियो चला देते हैं, उससे मैं सैयद जवाद जी से जवाब लेता हूं, लेकिन एक चीज जोड़ करके। सैयद जवाद भाई एक बात बताइए, ये जो मुस्लिम इलाका का कॉन्सेप्ट है और भड़कने वाला कॉन्सेप्ट है, तो भड़कने वाले लोगों के लिए ही तो 47 में और मुस्लिम इलाके वाले के लिए तो 47 में अलग देश बना दिया गया कि भाई अगर भड़कने की मानसिकता है और मुस्लिम इलाका मानने की मानसिकता है तो ये लो अलग देश दे दिया।
अब जो बचा है इसमें भड़कने की गुंजाइश कहां से याद जवाद भाई? अब इसमें हिंदू इलाका और मुस्लिम इलाका क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष देश है। जी देखिए, एक अभी संपादक साहब ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो ये मान लिया कि हम भड़कते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मान लिया कि ये भड़काते हैं। दूसरे लफ्ज में मान लिया। उदाहरण के तौर पर हम हमारी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, आप मैडम क्यों भड़का रही हैं आप हमको? क्यों भड़का रही हैं आप हमको? तकलीफ हो रही है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? मेरा जवाब दीजिए, आप भड़काएंगे? कृष्ण लाल सिंह साहब तो बहुत ही प्यारे हैं, वो किसी को नहीं भड़काते, लेकिन है कुछ लोग भड़काने का काम अभी डिबेट में ही करते हैं। नहीं, मैं तो किसी को नहीं भड़काता, मैं किसी को नहीं भड़काता। मैं तो कहता हूं कि अब इस धर्मनिरपेक्ष देश में भड़कने की गुंजाइश ही नहीं है। जो भड़कने वाले थे वो गए, 47 में ही निकल लिए वो। अभी देखिएगा, मैं कुछ बोलूंगा तो जवाब देखिएगा, 2 मिनट सुन नहीं पाएंगे, कटु सत्य सुन नहीं पाएगा कोई। अरे तो कटुता बोलेंगे ही क्यों आप? अरे आपको क्यों कटुता बोलनी है? आप प्यार से भी बोल सकते हैं, बोलिए ना प्यार से। देखा आपने? कटुता से बोलेंगे, बोल रहे प्यार से बोलेंगे, प्यार से भी बोलिए, बोल सकते हैं। प्यार से बोलिए, जो बोल रहा हूं प्यार से बोलिए। ये देखिए, अभी तो मैंने कुछ बोला नहीं, पहले भी अरे मैं समझ रहा, आप क्या बोल रहे हैं मैं वो भी जान रहा हूँ। आप भड़माइए मत, आपको जो भी तर्क रखने हैं आप रखिए जवाद साहब, और प्यार और कटुता मत कहिए, मजबूती से रखिए, मजबूती से। आप भड़क क्यों रहे? इजाजत तो दीजिए, मैं रख रहा हूं। देखिए, संविधान की बात हो रही थी कि सेकुलर लफ्ज डाला गया। इन लोग की जो मंशा है कि संविधान से सेकुलर हटा करके उसमें कम्युनल डाल दें, मंशा तो हम समझ रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, संविधान की धज्जियां कब उड़ाई गई थी और कब संविधान की जो है बिल्कुल ताक में उठा के रख दिया गया। संविधान 6 दिसंबर 1992 को धज्जियां उड़ा करके रख दी गई थी संविधान। वो होता है संविधान। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कर तो दिया, सुनवाई करके फाइनल कर दिया, लगा के उड़ा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल कर दिया उस मामले को। अरे रुक तो जाइए, आपको सवाल किसी और चीज के लिए पूछे और आप मुद्दा किसी और जो प्रश्न आपको पूछा गया, क्योंकि वो अलग से ले आए, इसलिए मैंने कहा इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया फाइनल। सुनिए, फिर उसके बाद कल्याण सिंह ने पता क्या कहा? 29 जनवरी 1993 को उन्होंने एक स्टेटमेंट बाकायदा जारी करा, स्टेटमेंट दिया कि हमको बाबरी मस्जिद तोड़े जाने का कोई अफसोस नहीं और वक्त आने पर हम संविधान भी बदलेंगे। ये उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी समय की कमी है जवाद भाई, समय की कमी है। मुझे थोड़ा सा डॉक्टर सुधा का एक रिएक्शन ले लेने दीजिए। डॉक्टर सुधा क्या दिक्कत है? डॉक्टर सुधा वो कह रहे हैं सेक्युलरिज्म शब्द अगर जोड़ा गया तो दिक्कत क्या है? आपका क्या ये तर्क है कि अगर ये शब्द इतना ही जरूरी होता तो डॉक्टर अंबेडकर और जो संविधान सभा उस समय जिस समय संविधान बना रही थी उस समय इस पर पूरा विचार हुआ, लेकिन फिर भी इसको जोड़ा नहीं गया था? डॉक्टर सुधा, पहली चीज तो ये है, जब मैंने बोला है 26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तब सेक्युलरिज्म नहीं था, सोशलिस्टिक सेक्युलरिस्टिक नहीं था तब। इन्होंने इसको जोड़ा गया था 1975 में आफ्टर इमरजेंसी, मतलब इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा था क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वोट जिहाद के लिए ये लोगों ने किया था, एंड दैट टाइम इमरजेंसी वाज आल्सो देयर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड, मतलब इसका जो ठीक है, समय कम है ना, डॉक्टर सुधा, समय कम है। मुझे एक लाइन विनोद जी का रिएक्शन लेना है। एक लाइन विनोद जी का, नहीं चाहिए मतलब हम जो है वासुदेव कुटुंब बोल के बोलते हैं, रुकिएगा जरा विनोद जी कुछ करें, हम साथ लेके चलते हैं। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डालने की जरूरत नहीं है जल्दी से, क्योंकि समय की कमी है। जल्दी और भारत में पूरी सुरक्षा, एक मिनट डॉक्टर सुधा रुकिएगा। बोलिए विनोद जी, बोलिए। सुधा जी, एक जवाब साहब, एक मिनट। सेकुलरिज्म से किसी को जवाब साहब दिक्कत नहीं है। सेकुलरिज्म जो है इस देश की आत्मा है, किसी को लेकिन उसका सही ढंग से पालन हो। सेकुलरिज्म जो है इस देश की एक प्राचीन व्यवस्था है। दिक्कत तब है जवाद साहब जब इस सेकुलरिज्म के नाम पे संविधान के ऊपर सरिया ऊपर हो जाए। बिल्कुल, इसी नोट पर मुझे खत्म करना है। इसलिए इस देश में आप संविधान की बात करते हैं अपने मतलब से, और जब संविधान की बात का मतलब ये कि सेकुलरिज्म हो, सही मायने में सेकुलरिज्म हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया जवाद साहब, शुक्रिया डॉक्टर सुधा, शुक्रिया। समय की कमी है, बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिल्ली से एक बड़ी खबर, सीएजी रिपोर्ट को लेकर एक बार फिर एलजी ने सीएम को पत्र लिखा है।
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे दिल्ली की, जहां चुनाव के पहले कैग रिपोर्ट को लेकर एलजी ने सीएम को पत्र लिखा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों ने सियासी हलचल तेज कर रखी है, लेकिन एलजी सक्सेना की कैग रिपोर्ट असेंबली में रखने की बात इस हलचल की तपिश को और ज्यादा बढ़ा रही है। सीएजी की लंबित 14 रिपोर्ट का मामला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। तो उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने की बात कही है। दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले एलजी से रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मांग की थी, तो एलजी ने विशेष सत्र बुलाकर चुनाव से पहले सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने को कहा है। उधर बीजेपी सीएजी की रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार दबाव बना रही है, घेर रही है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में बीजेपी ने याचिका भी दाखिल कर दी है। एलजी सक्सेना ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि शराब शुल्क प्रदूषण संबंधी कैग रिपोर्ट स्वीकृत है। एक संवैधानिक दायित्व है कि सरकार सीएजी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे। उधर केजरीवाल दिल्ली में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में लगातार कानून व्यवस्था की बिगड़ी हालत पर वो लगातार खामोश हैं। ड्रग्स के खिलाफ बोलने की सजा एक सरपंच को वहां पर मिली है पंजाब में। बरनाला जिले के छना के सरपंच सुखजीत सिंह की हत्या कर दी गई। स्थानीय बताते हैं कि सरपंच ने गांव में नशे को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया था, फैला रहे थे, तो युवाओं को इसे दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तो नशा तस्कर गुंडों के साथ सरपंच के घर पर गुंडों ने धावा बोल दिया और सरपंच पर हमला करके उन्हें मार डाला है। तो सवाल ये कि उड़ता पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके खिलाफ नशा मुक्ति का संकल्प लिया था, लेकिन नशा का कारोबार तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल कैग रिपोर्ट दिखाने से बच क्यों रहे हैं। 2011-12 में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल का मुख्य हथियार था सीएजी रिपोर्ट, जो उन्होंने उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में उस सीएजी रिपोर्ट को हाथ में लिए वो सड़कों पे घूमते थे, और जब सत्ता में आए तो सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही एसीबी की जांच की मांग की थी, सिफारिश की थी, ऑर्डर दिए थे कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। लेकिन आज जब खुद अरविंद केजरीवाल सत्ता में है, तो फिर सीएजी रिपोर्ट दिखाने से क्यों बच रहे हैं। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमरेंद्र, पहले भी सीएजी रिपोर्ट को लेकर के एलजी कह चुके हैं, पहले भी ये मुद्दा सामने आ चुका है, लेकिन अब जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें क्या खास बातें और क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई जवाब आया इसके बारे में अभी तक? लालचंद जी, देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 149, जिसके तहत कैग यानी कि कैग को कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, जो संसद, विधानसभा, किसी भी सरकारी संस्थान के खर्चे का, लेखा जोखा का ऑडिट करती है। संविधान के आर्टिकल 150 में उस ऑडिट की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, और जो आर्टिकल 151 है संविधान का, वो ये कहता है कि कैग की रिपोर्ट, चाहे वो संसद के लिए की गई हो, सरकार के लिए की गई हो, या विधानसभा के लिए की गई हो, या राज्य सरकारों या किसी संस्थान के लिए की गई हो, उसको अगर कैग की रिपोर्ट केंद्र सरकार के लिए की गई है तो संसद में टेबल किया जाना चाहिए उसकी एक कॉपी को, और अगर वो स्टेट के लिए की गई तो विधानमंडल में उसको टेबल किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 149, 50 और 51 कहता है। और यहीं से ये मामला प्रकाश में आता है जब अरविंद केजरीवाल 10 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, और इन 10 सालों में जिस तरह के उनके वादे और दावे, और जो मूल 3 दावे जिसके लिए विशेषकर 14 जो ये कैग की रिपोर्ट थी, जिनका जिक्र एलजी ने अपने पत्र में लिखा है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर जो खर्च हुआ है, दिल्ली को जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं और उसमें जो प्रदूषण से बचने के लिए जो प्रावधान किए गए उसके ऊपर कितना खर्च हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा दाग अगर कहें तो जो अरविंद केजरीवाल की सरकार और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा हुआ है, शराब नीति के लिए बनाने में और इसको इंफ्रा करने में कितना पैसा लगा है। इनकी रिपोर्ट्स, वो 14 रिपोर्ट्स थी जो इनको कायदे में अपने
आप टेबल कर देनी चाहिए थी, लेकिन लगातार दिल्ली के जो राज्य उपराज्यपाल है वो जो है कंटिन्यू कह रहे हैं कि आपको विधानसभा में इसे टेबल करना चाहिए। बिल्कुल समय की कमी है फिलहाल, लेकिन इतनी बात जरूर है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये लगता है एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इस मुद्दे पर जोड़ने के लिए और बात करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।